हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम आज बात करेंगे एसिड्स क्या हैं, व्हाट आर बेसिस एंड व्हाट आर द सॉल्ट्स। तो सबसे पहले बात हम करते हैं एसिड्स एंड बेसिस की, राइट। द एसिड्स एंड बेसिस आर द टू अपोजिट्स कंपोनेंट और कंपाउंड्स। आप कैसे हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है ना। आपने ये चीजें सुनी होगी, दैट इज एसिडिक, दैट इज बेसिक, but what does it mean, right? Or how will you identify कि that particular compound is acidic in nature or basic in nature? जो आपके acids होते हैं they are sour in nature. Sour in nature मतलब कि जब when you taste it they are sour nature. वो आपको मतलब कि टेस्ट में जो है खट्टे होते हैं। जैसे कि आपके कुछ फ्रूट्स हो गए लाइक योर ऑरेंज, लाइक लेमन, तो ये क्या है हमारे, दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। सेम वाइनगर सिरका जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी आपका एसिडिक इन नेचर होता है। सेम जो बेसिस हमारे होते हैं, द बेसिस आर बीटर इन नेचर, वो टेस्ट में जो है कड़वे होंगे, राइट। द मेन अगर आपका जो आपका बेसिक अगर डिफरेंशिएट आपको करना है तो एसिड्स आर सॉवर नेचर एंड बेसिस आर बिटर इन नेचर। और द एग्जांपल ऑफ बेसिस आर लाइक योर टूथपेस्ट है वो आपका बेसिक सब्सटेंस है, राइट। सेम एज योर बेकिंग सोडा, दिस कंपोनेंट वी यूज इन डेली लाइफ आर बेसिक इन नेचर, है ना। और लाइक अवर जैसे मैंने बताया कि वाइनगर जिसमें इट कंपोज्ड ऑफ एसिटिक एसिड, उसमें एसिटिक एसिड होता है एंड इट इज एसिडिक इन नेचर, राइट। सेम योर orange and your lemon, they contain same your lemon and orange contain citrus acid and they are also acid and they are acidic in nature. There are so many examples of acids and base that we are used in our daily life, right? तो that is a basic जो है एक आपको डिफरेंस बताया, बट विदाउट टेस्टिंग बिकॉज you can't taste all the acids or the base because it may be harmful. It may be harmful to your health. It may be harmful to taste. So हम कैसे without taste them how will you tell कि ये आपका acidic और है और ये basic in nature है? So there are the indicators. There are some synthetic indicators, there are some natural indicators जो हम use करते हैं to identify कि that particular substance is acidic or basic in nature. So what we use, first thing is that the acids they are sour in nature, sour in taste, and the bases they are bitter in nature, and the bases they are bitter in taste, right? Now the second thing is that without tasting them how can you identify that ki particular substance is acidic or basic, right? So there is indicators that we used, right? So indicators may be your natural indicators or the natural indicators we can use or the synthetic indicators we used. First of all we talk about natural indicators. So natural indicators में the most जो आप बहुत ज़्यादा इसमें सुनेंगे that is your litmus actually a purple dye solution or it is extracted from a plant called lichen, right? So it is our natural indicator, same as our turmeric powder. It is also an indicator, natural indicator, turmeric powder that we used. Moreover, there are some petals of flowers that also used to identify the nature of a substance. So petals of the
petal of flower we can use. Also leaves of cabbage leaves we can use. Cabbage leaves, that also we can use, right? So these are the some natural indicator that we use. There are some synthetic indicators. Synthetic indicators like our methyl orange that mostly used, methyl orange indicator, or phenolphthalein, methyl orange or the phenolphthalein. So these are some synthetic indicators that we used. And how we use them as an indicator? Because how we use them? There are some type of maybe there is a change in color, or maybe change in their odor, or maybe there may be some smell, or there may be some reaction that indicate that the particular substance is acid or base. For example, अगर हम litmus की बात करें तो acid क्या करता है? It change blue litmus to red. तो ये क्या करता है? चेंज करता है लिटमस के कलर को फ्रॉम ब्लू टू रेड, राइट? और ये बेस का क्या करेगा? इट विल चेंज रेड लिटमस टू ब्लू. So without tasting them, by observing the change in the color, we can identify कि particular substance is acid or the base, right? हमारा acid है वो blue litmus को change करता है into the red litmus, मतलब उसका color change कर देता है blue to red, right? और ऐसे ही जो आपका base है, because they are two opposites thing, because acid and base are the two opposite thing we are talking about. तो ये क्या करता है? red litmus को change कर देता है blue में, right? और जब हमें, और आपने देखा भी होगा कि हम क्या करते हैं, कभी कभी इस एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं? बेस. एक बार जब जलने पे हम जो है बेसिस का यूज करते हैं, राइट? जैसे कि टूथपेस्ट हो गया. और ऐसे ही अगर हमारा इन लैब अगर हमारा एसिड जो है हमारी स्किन पे कहीं पे लग जाए या टच हो जाए, तो वी यूज द बेसिस टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दैट एसिड. ठीक है? तो एक के इफेक्ट को कम करने के लिए हम दूसरे का यूज करते हैं, राइट? तो ये तो हुई बेसिक प्रॉपर्टी कि वहां उनका टेस्ट क्या होगा, व्हाट विल बी देयर कलर व्हेन द इंडिकेटर विल यूज्ड, राइट? तो हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की. तो इंडिकेटर्स में देयर आर सम कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स लाइक लिटमस पेपर, like our methyl orange and phenolphthalein, right? So there is a table ki how will their color change or how will they react in different mediums, in acid, in base or in neutral condition. So there is a acid, base and neutral, right? So there is a how they will react in different medium like in acid, base or neutral. How will they react, right? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की. इन एसिड अगर हम लिटमस पेपर जो है उसमें डाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, इफ वी हैव अ सॉल्यूशन, राइट? और अगर हम उसमें लिटमस पेपर हम डाल रहे हैं, राइट, डिप कर रहे हैं, तो क्या होगा? दैट लिटमस पेपर इफ इट चेंज इन द रेड कलर, दैट मींस कि जो हमारा सॉल्यूशन जो हमारे पास सैंपल सॉल्यूशन इट इज एसिडिक इन नेचर और इट इज एसिड, राइट? सेम अगर हमारा जो कलर है लिटमस का वो ब्लू हो जाता है, जैसे कि अभी बताया भी था, इफ इट टर्न इनटू ब्लू दैट मींस द सॉल्यूशन इज बेस, राइट? एंड इफ देयर इज नो चेंज इन इट्स कलर दैट मींस कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, राइट? सेम अगर हम मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो इन एसिड इट विल चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू रेड. न्यूट्रली जब वो ना एसिड ना बेस है तो उसका कलर है ऑरेंज, बट इन एसिड इट विल चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू रेड कलर. सेम इन बेस इट विल चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू येलो, and in neutral there will be no change and it will remain orange, right? तो हम यहाँ से इंडिकेट उसके कलर चेंज से बता सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो कौन सा सॉल्यूशन है, which type of solution is this.
फेनोल्फथलीन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इन एसिड इट विल रिमेन द कलरलेस, राइट, इन एसिड इट विल रिमेन कलरलेस, इन बेस इट विल टर्न इनटू लाइट पिंक, और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल की तो अगेन इट विल बी कलरलेस। ठीक है, तो ये मेन हमारे जो बेसिक जो कॉमनली यूज हमारे इंडिकेटर्स हैं वो कैसे उनका कलर चेंज होता है अलग अलग मीडियम्स में, वो हमने यहाँ पे पढ़ा। लेट्स टेक सम सॉल्यूशंस, लाइक हमारे पास यहाँ पर है H2SO4, सेम NaOH, राइट, H2SO4, NaOH, then third one is CaOH twice, right? Same we have some HCl, then as the same we have HNO3, right? These are the chemical formulas, right? These are the chemical formulas of different substances. जैसे H2SO4 is your sulfuric acid, तो यहाँ पे आप नाम से पहले पता है कि that is a sulfuric acid, जो sodium hydroxide, that is CaOH twice, that is your calcium hydroxide, that your HCl is your hydrochloric acid, and HNO3 that is your nitric acid. So अगर ये हम यहाँ पे एज ए सॉल्यूशन अगर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमारे पास अलग अलग बीकर्स में ये 5 सॉल्यूशन हमारे पास हैं, और हमें नहीं पता कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो क्या है, राइट? वी हैव टू नो कि ये हमारा जो सॉल्यूशंस है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, राइट? मतलब कि हम 5 बीकर्स में अगर हम ये जो है सॉल्यूशन लेते हैं और अगर हम इसमें चेक करते हैं तो क्या हमें मिलेगा कि जब हम इसमें लिटमस पेपर डिप करेंगे तो ये क्या है, ये इट विल चेंज, ये आप लैब में जाके ये परफॉर्म कर सकते हैं, तो द लिटमस पेपर विल चेंज इनटू रेड कलर, दैट मींस कि H2SO4 जो हमारे पास सॉल्यूशन है दैट इज एसिडिक इन नेचर, राइट? सेम हम NaOH, ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसमें लिटमस पेपर जो है उससे इसको हम चेक करते हैं देन इट विल टर्न इनटू ब्लू कलर, और ये इंडिकेट करता है कि इट इज अ बेस, राइट? CaOH का twice, that is our calcium hydroxide, another name of it is lime, और lime it is our base। तो जब हम इसमें लिटमस पेपर से अगर हम उसको चेक कर रहे हैं तो that will again change into blue color and that means it is a base, right? तो ये हम लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। HCl, that is as you know HCl is hydrochloric acid, और hydrochloric acid will change the litmus paper into red, so it is acid। Same HNO3, that is our nitric acid, it will change litmus paper into red color and that means it is an acid, right? तो इस तरीके से हम लिटमस पेपर या मिथाइल ऑरेंज में क्या है, हमें उसकी टाइट्रेशन करनी होती है, राइट? ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज के केसेस में, फिनोक्सिन के केसेस में हमें टाइट्रेशन से हम जो है उसको चेक करते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो आपका एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल है। there is another kind of indicators that are called olfactory indicators। Olfactory indicators are those substances whose odor will change in acid or a basic media, right? तो यहाँ पर क्या है कि इससे पहले जो हमने लाइक मिथाइल ऑरेंज या लिटमस पेपर जो हमने इंडिकेटर्स हमने यहाँ पे स्टडी किए, their color will change in different media, but there are some kind of substances whose odor, whose smell will change, right? Some examples are like onion, the solution acid and base, right? और तो for example onion, right? Onion का जो स्मेल है एसिड विल नॉट चेंज, तो एसिड जो है ऑनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। आपको पता है ऑनियन की एक अलग जो स्मेल है वो उसी स्मेल में रहेगा, एसिड से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज इन देयर स्मेल, ठीक है? बट इन बेस the onion become smellless, मतलब उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा and there will be no smell, right? तो
एसिड में ऑनियन का जो स्मेल है वो वैसा ही रहेगा, राइट, नो चेंज इन देयर स्मेल, नो चेंज इन स्मेल, ठीक है। एंड इन बेस देयर विल बी नो स्मेल। अगर आप बेस में ड्रिप करते हो या मिक्स करते हो सॉल्यूशन तो देयर विल बी अ नो स्मेल, राइट। तो ये आप एक्टिविटी वहां पे करके देख सकते हो विद द स्ट्रिप ऑफ सम क्लॉथ्स, राइट। और उनको जो है एक बैग में ऑनियन अच्छे से चॉप करके ऑनियंस को, और एक बैग में जो है वो क्लॉथ स्ट्रिप्स और ये ऑनियन जो है वो आप रख सकते हो कुछ टाइम के लिए, राइट, एक, ठीक। और उसके बाद जो वो स्ट्रिप्स हैं वो एज ए इंडिकेटर आप यूज करोगे, और एक आप एसिडिक सॉल्यूशन लोगे, एक आप बेसिक सॉल्यूशन लोगे। फॉर एसिड यू मे बी यू आर यूजिंग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हो, और बेस के लिए आप लेते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो जब आप जो है वो जो ऑनियन की जिस क्लॉथ में से स्मेल आ रही है उसको जब आप जो है एसिड सॉल्यूशन में यानी कि HCl में डालते हो और देन आप बाहर निकाल के देन आप अगेन स्मेल करते हो, देयर विल बी नो चेंज इन इट्स स्मेल। वो अपनी जो है नेचुरल स्मेल जो ऑनियन की पर्टिकुलर स्मेल होती है उसमें ही रहेगा, राइट। बट जब आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालते हो एंड देन उसको निकाल के तब स्मेल करते हो तो आप यू विल फाइंड आउट कि उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही है, राइट। तो बेस में उसकी स्मेल आनी बंद हो जाएगी। ऐसे ही हम एक और यहाँ पे ऑल्फैक्टरी सॉल्यूशन लेते हैं, ऑल्फैक्टरी सॉल्यूशन दैट इज वेनिला। वेनिला आपने सुना होगा, वेनिला इज आल्सो चेंज इट्स स्मेल इन एसिड और बेस। तो सेम यहाँ पर भी यही होने वाला है, जब इन एसिड देयर विल बी नो चेंज इन इट्स स्मेल, कोई चेंज नहीं होगा उसकी स्मेल में, बट in base again the smell will change or smell disappear। स्मेल जो है जो वेनिला की पर्टिकुलर स्मेल है वो आपकी डिसअपियर हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, राइट। तो ये हमारा इस तरह से हम ऑनियन या वेनिला यूज करके एक पर्टिकुलर हम किसी सॉल्यूशन में बता सकते हैं कि ये जो है हमारा एसिडिक है या बेसिक है बाय स्मेल इट।